this session we discuss about the elastic potential energy and similarity with a spring. Okay, so let's see first discuss the similarity, then after we discuss about the potential energy. Okay, so similarity between spring and wire. Let's see, it's very simple. Suppose you consider that is a spring. You apply some force on the spring like this. See, suppose you apply some force on the spring, then spring is expand or compressed like this. So similar way, consider that is a wire. You apply या फिर रोड, कुछ भी कंसिडर करो, रोड या फिर वायर, एनीथिंग. सपोज कंसिडर रोड, both are actually same. Okay, so you apply the force on this also. So length of the wire is length of the road is also changed. So here change in length is what? In this case, change in length is given by x. It is given by x. So here in this case, change in length is given by delta L. Okay. So now how we give this x actually? So x is given in this way. See, here the spring constant is what? K. Here consider the road constant is k dash, या फिर इसको भी k ही लेते हैं, बट यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है. सो यहाँ कंसिडर द इलास्टिक रोड constant is supposed to be k. So how you write the force? So force is equal to k into x, as we know. So x is equal to force upon k. So how you write the delta L in this case? So delta L is equal to force upon area into length upon y, as we derive this relation. Okay, and you just make this equation exactly similar to this one. So delta L, let's write delta L is equal to, here force is as it is, and you just make it Ay by L. Ay by L. Okay, so this is Ay by L. So if you compare this both, so x is replaced by delta L, force is force. So what is the road constant k here? So here in this case you must be write the k is equal to Ay by L. Okay, so everywhere you use this equation, you get the answer. Okay, so in this case अगर आपको force लिखना है तो force is equal to k, x की जगह पे आपको लिखना है k delta L. Force is equal to क्या लिखना है? K delta, but where k is equal to what? Ay by L, where A is the cross section area, y is the Young's modulus, and L is the length of the wire. Okay, then you get the answer. Let's come to this next one. How we write the energy? Actually potential energy. How we write the potential energy? So here you write down the potential energy. U is equal to 1/2 kx square. U is equal to 1/2 kx square, या फिर आप ऐसे भी लिखते हो जनरली 1/2 f into x, या फिर ऐसे भी लिखते हो f square by 2k. So here in this case we write the same theory, we apply the same situation in this case also. Here the potential energy is written the same way. See, U is equal to, that's called elastic potential energy. We call it is a elastic potential energy. Write down full terms. Elastic potential energy. ओके, सिमिलरिटी से आप इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो और काफ़ी टाइम यूज़ भी कर सकते हो. अगर पूरा इक्वेशन लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो यू इज इक्वल टू 1/2 के की जगह पे आपको रखना है Ay बाई एल, एंड एक्स की जगह पे रखना है डेल्टा एल स्क्वायर. ये भी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं. सो 1/2 एफ तो एफ ही रहेगा. ओके, एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है? डेल्टा एल. थर्ड पे चलते हैं, एफ स्क्वायर तो वो तो वही रहेगा अपॉन 2, के की जगह पे फिर से Ay by L. Then these are the elastic potential energy equation. Okay, and you remember this whole equation, you must be remember this whole equation. Okay, if you have some initial length and final length, then how we write the potential energy in case of spring? Suppose x initial and x final is given to us, then potential energy U is written as a 1/2 k x final square minus x initial square. तो यहाँ पे भी ऐसा ही लिख सकते हैं, U is equal to 1/2 Ay by L
डेल्टा एल फाइनल स्क्वायर माइनस डेल्टा एल इनिशियल स्क्वायर। अगर आपको चेंज हो रहा है तो आप इस तरह से इसको डिनोट्स कर सकते हो। ओके, नाउ वन अनदर टर्म्स यू मस्ट बी रिमेंबर, दैट इज एनर्जी डेंसिटी इन दिस केस, एनर्जी density, that is denoted by rho e. Okay, elastic energy density. So it is what? Elastic potential energy upon volume of rod. So answer क्या हो जाएगी? u कितना है? see how much you have, we just derive this equation. So u यहाँ पे इस ये लिख दो, चलो u is equal to 1 by 2 ay by l into delta l whole square. So u is equal to 1 by 2 ay by l into डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन रोड का वॉल्यूम क्या होगा? सी इसका वॉल्यूम अगर आपको लिखना है तो वॉल्यूम आप लिख सकते हो एरिया इनटू लेंथ, तो यहाँ पे रख दो, चलो सो दैट इज अ एरिया इनटू लेंथ। इफ एनीथिंग इज कैंसल देन कैंसल इट, सी ए कैंसल, ओके, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो बाकी का जैसे लिखते हैं। सो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1 by 2 डेल्टा एल अपॉन एल स्क्वायर, डेल्टा एल अपॉन एल स्क्वायर इंटू वाई, दैट इज एप्सिलॉन स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आपको मिला रो ई इज इक्वल टू 1 by 2 एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू वाई, दैट इज एनर्जी डेंसिटी फर्स्ट इक्वेशन। बट एज वी नो, यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशन तो पता है, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू वाई, सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? हुक्स लॉ याद करो आप, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू वाई। यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन आपको एप्सिलॉन रिप्लेस करो, चलो तो आंसर मिल जाएगा कि रो ई इज इक्वल एप्सिलॉन मतलब सिग्मा अपॉन वाई होल स्क्वायर, सो 1 by 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई, सो 1 वाई कैंसल आउट, तो रो ई का सेकेंड इक्वेशन मिला आपको सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 वाई। ओके, सिमिलर वे इफ यू रिप्लेस द वाई देन यू गेट द थर्ड आंसर। तो y की जगह पे आप क्या रख सकते हो इसमें से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, देन यू गेट द आंसर रो ई इज इक्वल टू 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन स्क्वायर, ऐसे ही y की जगह पे रिप्लेस करो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इट इज कैंसल आउट। सो थर्ड इक्वेशन यू गेट फॉर द एनर्जी डेंसिटी एंड दैट इज इक्वल टू 1 by 2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, वन एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर 3 इक्वेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी। So all of you must be remember the similarity between the spring and the rod like this, rod या फिर वायर कुछ भी, ओके, रोड भी लिख सकते हो, वायर भी लिख सकते हो। और एनर्जी का इक्वेशन होगा 1 by 2 ay by l इंटू डेल्टा एल स्क्वायर, या फिर 1 by 2 f इंटू डेल्टा, या फिर f स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ay by l, कोई भी इक्वेशन आप 3 में से यूज कर सकते हो। एंड ऑल ऑफ यू मस्ट बी रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, what we call it is a elastic potential energy density. Okay, and next one you consider the series and parallel connection of wire, series and parallel connection of rod। तो यहाँ पे आप ऐसा सोच सकते हैं, देखो आपके पास फर्स्ट केस ऐसा है सीरीज कनेक्शन, तो मतलब एक रोड को आपने सीरीज में कोई दूसरे रोड के साथ कनेक्ट किया ऐसे, ओके। और सेकंड है आपके पास पैरेलल, मतलब आपके पास कोई एक रोड ऐसा है उसके साथ आपने एक अनदर रोड ऐसे पैरेलल में कनेक्ट किया। तो इसको आपको ऐसे सोचना कि ये फर्स्ट स्प्रिंग है, ये सेकेंड स्प्रिंग है आपने कनेक्ट किया, और इसको आपको ऐसे सोचना है कि यहाँ पे फर्स्ट स्प्रिंग है, सेकेंड स्प्रिंग है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो आप K1, यहाँ पे ले लो K2, यहाँ पे ले लो K1, यहाँ पे ले लो K2, इसकी लेंथ आप मान लो L1, इसकी लेंथ आप मान लो L2, एरिया तो दोनों का सेम ही रहेगा। यहाँ पे मान लो कि दोनों की लेंथ तो L ही रहेगी, L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, इसका एरिया आप मान लो A1, इसका एरिया आप मान लो A2। तो अगर इस केस की बात करें फर्स्ट केस सीरीज कनेक्शन में, तो जब भी आप इसको रिप्लेस करते हो, चलो इसको यहाँ से निकाल देते हैं, K1 की K2 की वैल्यू रखते हैं। सो व्हाट इज K1 एंड K2? AY by L। सो K1 इज इक्वल टू, इसका लिखो, सो A Y1 by L1, K2 लिखो तो A Y2 by L2, ओके। ये तो सेम है, इसलिए यहाँ पे K1 की वैल्यू लिखो तो
A1 Y1 बाई एल, क्योंकि लेंथ सेम है, यहाँ K2 की वैल्यू लिखो A2 Y2 बाई एल. So how we write the equation of series connection and equation of parallel connection? So parallel में स्प्रिंग का केस कैसा होता है, K इक्विवेलेंस इज इक्वल टू K1 प्लस K2, और सीरीज में कैसा होता है, K सीरीज, यहाँ पे P कर देते हैं, K पैरेलल, और K सीरीज का आंसर क्या होता है जनरली अगर आपको फाइंड करना है तो 1/K सीरीज इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2. ऐसा आपका आंसर जो है कुछ मिल जाएगा. ठीक है, आप इसमें इक्विवेलेंस भी फाइंड कर सकते हो, इसमें इक्विवेलेंस K फाइंड करना है तो भी आप फाइंड कर सकते हो, इक्विवेलेंस K ही है. ठीक है, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा. यहाँ पे K1 और K2 की वैल्यू रखो. एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. फर्स्ट में सीरीज में वैल्यू रखते हो आप, पैरेलल में वैल्यू रखना. ठीक है, या फिर पैरेलल में रख के सीरीज में आप रखना. चलो यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ. तो K इक्विवेलेंस कैसे लिख सकते हो पैरेलल के केस में, लेंथ तो L ही रहेगी, बट A क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 इंटू वाई इक्विवेलेंस अपॉन उसकी लेंथ कितनी होगी L इज इक्वल टू, यहाँ पे K1 का क्या लिख सकता हूँ A1 Y1 अपॉन L प्लस A2 Y2 अपॉन L. तो वाई इक्विवेलेंस का आंसर कितना मिला देखो कि A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2 आपका आंसर. ठीक है, सिमिलर वे आप इसमें वैल्यू रख के आप फाइंड कर लेना. यहाँ पे मैंने K1 K2 एवरीथिंग रखा है. ठीक है, बट सीरीज में आप वैल्यू रखते याद रखो L1 प्लस L2 का एरिया सेम होगा. चलो वो भी मैं एक इक्वेशन रख देता हूँ तो आपका आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, लेट्स सी हाउ वी राइट द 1/K सीरीज. सो 1/K सीरीज मतलब व्हाट, AY बाई L. सो A तो सेम ही रहेगा उसमें, तो Y इक्विवेलेंस और L की जगह पे L1 प्लस L2. सो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 1/K1 मतलब L1 अपॉन AY1 प्लस L2 अपॉन AY2. आप इसमें से कैंसिल आउट करो, Y इक्विवेलेंस को फाइंड करो, आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ अ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रोड. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको गिवन है तो आप इस सिमिलैरिटी थ्योरी का यूज़ करके उसको सॉल्व करना. स्प्रिंग के इक्वेशन आपने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं, तो द सेम इक्वेशन यू मस्ट बी यूज हियर एंड यू गेट द फाइनल आंसर. ओके, सो दिस टाइप ऑफ केस वी हैव टू डिस्कस हियर एंड यू रिमेंबर दिस. चलो क्लियर है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. तो पूरी थ्योरी आप अच्छे से नोट्स करना. नेक्स्ट सेशन में हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, जो भी एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में गिवन है या फिर एडिशनल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो.